in this channel. Its name is Magnetoplast Studies. तो आज हम फर्दर अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं. दिस इज क्लास 10th चैप्टर है 9.1 और है हमारा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का. क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो क्या चाहती है, 2 स्लाइड्स को लगाना चाहती है, एक छोटे बच्चों के लिए और एक बड़े बच्चों के लिए. अब जो छोटे बच्चों के लिए स्लाइड है वो ग्राउंड से 1.5 मीटर की हाइट पर वो उसको एडजस्ट करेगी और जो बड़े बच्चों की स्लाइड है उसे ग्राउंड से 3 मीटर की हाइट पर वो लगाएगी. तो अपनी स्लाइड्स को वो छोटे बच्चों की स्लाइड को वो 30 डिग्री एंगल पर इंक्लाइन कर रही है और बड़े बच्चों की स्लाइड को 60 डिग्री की एंगल पर वो लगा रही है. सो यू ऑल हैव टू फाइंड द length of these slides. So I hope you all understand what is our question. तो चलिए, without wasting our time, let us start our lecture. Before that, you all like this video, share this video and subscribe this channel. So let us start our lecture. तो क्या है, क्या करेंगे हम? सबसे पहले जो हमें गिवन है उसे राइट डाउन कर लें. Height of slide for children, for small children. छोटे बच्चों के लिए जो हाइट या फिर बिलो, you can write down below the age of 5-year children. Height of slide for small children, so that is equal to 1.5 मीटर. एंगल कितना है? 30 डिग्री. तो ये है ग्राउंड से उसकी हाइट एंड दिस इज द एंगल. सो हम इसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. सो ए बी क्या हो गई? इस स्लाइड की दूरी हो गई कहां से? उसके फुट से. बी फुट से ए स्लाइड की दूरी हो गई, दैट इज ए बी. सो हमें निकालना क्या है? वी हैव टू फाइंड द ए सी. So what formula we apply? We have height. हमें BC पता है. We want to find AC. So simply we apply formula sin 30 degree. That is equal to perpendicular upon hypotenuse. So BC 1.5 and AC we have to find out. So sin 30 degree कितना होता है? That is 1/2. So this is 1.5 upon AC. Whenever we cross multiply, hold the term, what we get? AC is equal to 15 to the 30. This is 3.0 meter. So AC हमारी जो स्लाइड है बच्चों की वो कितनी लंबी है? That is 3 meter. Similarly, we find out the length of the slide for the bigger children's. So let us see how can we do this. We can write height of the slide, that is 3 meter. Angle, that is equal to 60 degree. So in right angle triangle DEF, what do we have? In right angle triangle DEF, what we have? We have sin 60 degree because I have to find the DF. मुझे क्या निकालना है? DF, length of the slide. So sin 60 degree is equal to perpendicular, that is EF upon DF. And what is EF? This is 3. And what is DF? This is, I want to find it. So now you cross multiply. And what is sin 60 degree? Sin 60 degree under root 3 upon that is equal to 3 upon DF. Now you cross multiply. So what do you get? DF is equal to, I write this, DF is equal to, so whenever we cross multiply, DF goes there and this 2 get multiplied with this 3. 3 2s are
I can write this 3 into 2 और यहां पर अंडर रूट 3/2 है, दूसरी तरफ जाएगा, df इस तरफ आ जाएगा, अंडर रूट 3/2 जो राइट हैंड साइड जाएगा, देन इट विल बिकम 2/√3. Now this 3, how can I write it? I can write it as under root 3 into under root 3 into 2 divided by under root 3. So whenever I cut this, so how much height for df? That is 2 under root 3. So bade through 2 under root 3 meter. So in this way I got my answer. So here we have question number 5. A kite is flying at the height of 60 meter above the ground. ये है आपके सामने एक काइट जो कि ग्राउंड के लेवल से, दैट इज बी पॉइंट, वहां से 60 मीटर की हाइट पर आसमान में उड़ रहा है। अब इसके स्ट्रिंग को क्या किया, इसके धागे को क्या किया जिसकी हेल्प से हम काइट को उड़ाते हैं, उसे टाई कर दिया किसी एक पॉइंट पर टेम्पररी, मतलब परमानेंट नहीं भाई, थोड़ी देर के लिए। वो पॉइंट है ए और वहां पर उसको इस हिसाब से, इस एंगल से टाइट किया गया है, एंड दैट एंगल इज 60 डिग्री। 60 डिग्री के एंगल पर उसे वहां पर इंक्लाइन किया गया है, बांधा गया है। व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड दिस इज मींस द लेंथ ऑफ थ्रेड। हमें क्या निकालना है? ये AC निकालना है, एंड देयर इज नो बेंड, मीन्स उस धागे में किसी भी तरह का बेंड नहीं है, वो टोटली एक एज्यूम कर लेते हैं कि वो बिल्कुल एक स्ट्रेट थ्रेड है. सो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द थ्रेड. So let us see how can we do this question. Firstly, write down what you have. Height of the kite. This is our solution. Height of kite above the ground. Above the ground, that is 60 meter. Ground से कितनी ऊपर है भाई? 60 मीटर की है. Angle subtended by the thread. एंगल फॉर्म्ड लिख लें, कुछ भी लिख लें. एंगल फॉर्म्ड बाय थ्रेड, तो थ्रेड के द्वारा या स्ट्रिंग लिख लें. एंगल सबटेंडेड बाय, एंगल फॉर्म्ड बाय स्ट्रिंग. सो कितना फॉर्म कर रहा है एंगल? दैट इज 60 डिग्री. व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ थ्रेड. तो हमारे पास परपेंडिकुलर है, हमें पता है वो कितनी हाइट पर उड़ रहा है. हमें निकालना क्या है? हमें hypotenuse निकालना है. We make it like a right angle. Consider it as a right angle triangle. So we have to find the length of that thread. So what formula we apply? We apply sin 60 degree. Sin 60 degree क्या होता है? Perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular, that is BC. Hypotenuse, that is AC. So what is BC? This is 60. And what is AC? I have to find it. So what is sin 60 degree? This is under root 3 upon 2. And 60 upon AC. So whenever I multiply, what I get? So AC goes there, और under root 3 upon 2 इधर है, right hand side में जाएंगे, then whole term will become reverse. So what I get? 2 upon under root 3. अब क्या मैं 60 को कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ कि मैं नीचे से under root 3 को हटा सकूँ, डिनोमिनेटर में under root 3 ना रहे. So how can I write 60? I can write it as 3 into 2, 20 and into 2 upon under root 3. 3 को कैसे लिख सकते हो? Under root 3 into under root 3. 22 that is 40 upon under root 3. Under root 3 gets subtracted. What I get? 40 under root 3 meter is the length of the thread. हाँ, अगर आपको एग्जाम में under root 3 की वैल्यू 1.73, you all remember that, पर कई बार एग्जाम में दी गई हो, then you multiply it, otherwise you leave your answer 40 under root 3 meter. So in this way I got my answer. We have question number 6. क्या है question number 6 में? एक बिल्डिंग है AE जिसकी हाइट है 30 मीटर और एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर. वो कुछ दूरी पर खड़ा होकर बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है. अब जब हम नीचे से खड़े होकर टॉप को देख रहे हैं, सो दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन. कितने डिग्री एंगल है?
दैट इज 30 डिग्री। कितने डिग्री एंगल से? जब वो दूरी पर खड़ा है, अपनी आंखों को ऊपर उठा रहा है, दैट इज 30 डिग्री। और मैंने आपको बताया था कि एंगल जो है वो कहां पर जनरेट होगा, वो होगा हमारा लाइन ऑफ साइट पर, हमारी बिल्कुल आंखों के हॉरिजॉन्टल। हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एज्यूम करेंगे, वहीं पर ये एंगल सबटेंड होगा। अब हम इस हाइट को बीच में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। बिल्डिंग की हाइट में से 1.5 को सब्ट्रैक्ट करके हम जो हाइट लेंगे उसी के हिसाब से हम अपना क्वेश्चन करेंगे। और वो कुछ दूरी बिल्डिंग की तरफ को बढ़ा, जैसे वो जी पॉइंट पर था, बीजी लड़के की हाइट है, दैट इज 1.5 मीटर। अब वो जी पॉइंट से एफ पॉइंट तक जा रहा है, तब हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या हो गया, कुछ बढ़ गया। बिल्डिंग के पास जा रहा है, पास जाने के लिए उसे अपने हेड को और ऊपर उठाना पड़ेगा, जिससे कि वो बिल्डिंग के टॉप को देख सके। तो वो एंगल बन चुका है 60 डिग्री। आपने क्या निकालना है? आपने ये जी एफ निकालना है कि वो बिल्डिंग के कितनी पास गया, कि एंगल ऑफ जो हमारा एलिवेशन है वो 30 से 60 डिग्री हो गया। सो दिस इज अवर क्वेश्चन। सो लेट अस स्टार्ट अवर क्वेश्चन। हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट कितनी है जो कि गिवन है, दैट इज 30 मीटर। 30 मीटर बिल्डिंग की हाइट है, पर हमें इस 1.5 से मतलब नहीं है, बिकॉज हम एंगल जो फॉर्मेशन है वो कहां से ले रहे हैं, उसकी लाइन ऑफ साइट से ले रहे हैं, जहां से वो बिल्डिंग को देख रहा है। सो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी? सबसे पहले ले लें ए बी डी। ए बी डी, ए बी डी में क्या है, हम क्या अप्लाई करेंगे? हम लेंगे यहां पर tan 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमें अब ये हाइपोटेन्यूज नहीं निकालना है, हमें निकालना है हमारा बेस। तो वी ऑल नो अबाउट द परपेंडिकुलर, हमें निकालना है बेस। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी, ए डी इज इक्वल टू, सबसे पहले आप ए डी ले लें, ए ई माइनस डीई। ए डी कैसे होगा? ए ई जो कि टोटल हाइट है बिल्डिंग की, माइनस डीई लड़के की हाइट को उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 30 माइनस 1.5, सो दिस इज 28.5 मीटर। क्या किया हमने? हमने लड़के की हाइट को बीच में इन्वॉल्व नहीं करना है। टोटल बिल्डिंग 30 मीटर की है, उसमें से लड़के की हाइट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। व्हाट वी गेट? 28.5 मीटर। अब इसे लेकर हम करेंगे अपना क्वेश्चन। तो राइट एंगल ट्राइंगल ABD, दिस इज tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, क्योंकि मैं ABD इसकी बात कर रही हूं, सो आई कैन राइट tan 30 डिग्री। अभी थोड़ी देर के लिए 60 डिग्री को मत देखें। सो दिस इज AD अपॉन BD। What is AD? 28.5 and what is BD? BD कैसे बनेगा? BC plus CD. So you can write here BD. तो tan 30 डिग्री 1 upon under root 3 and 28.5 upon BD. So whenever I cross multiply, hold the term, BD is equal to 28.5 अंडर रूट 3 को उधर जाकर हो जाएगी मल्टीप्लाई दिस मीटर। मीन्स ये जो टोटल BD है वो हमारा कितना आ चुका है? 28.5 अंडर रूट 3। क्या मुझसे BD पूछा गया है कि वो कितनी दूरी पर खड़ा है बिल्डिंग की हाइट से? नो, बिल्डिंग के फुट से कितनी दूरी पर खड़ा है? नहीं, ये हमसे नहीं पूछा गया। हमसे सिर्फ पूछा है कि वो कितने पास गया है, GF निकालना है। तो लेट अस डू। अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ADC, ADC। सो ADC में क्या है? दिस इज tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AD अपॉन CD। tan 60 डिग्री अंडर रूट 3
is equal to AD 28.5. AD 30 minus 1.5, then we get 28.5 upon CD. CD. अब इस CD के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मुझे पूरा BD पता है, बट आई डोंट नो अबाउट द CD. सो हाउ कैन आई फाइंड? आई कैन क्रॉस मल्टीप्लाई. CD को √3 से मल्टीप्लाई होगी, दूसरी तरफ √3 जाएगा, तो वो कहाँ जाएगा? इसके डिनोमिनेटर. So in this way I get my CD. CD जितना है उतना ही होगा हमारा EFB, because BGDE this is like a rectangle. तो जितनी टर्म हमारी CD होगी उतनी ही हमारी DF भी होगी. So that is 28.5 upon √3. तो क्या मुझसे EF पूछा गया था? जी नहीं, मुझसे तो GF निकालने के लिए कहा है कि वो कितना बिल्डिंग के पास गया है. तो मतलब अभी भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है. सो हाउ कैन आई फाइंड BC? आई हैव टू फाइंड BC या फिर GF. सो किस तरह से निकालोगे? GF इज इक्वल टू GE माइनस FE. फिर से देखें, GF इज इक्वल टू GE. टोटल में से क्या सब्ट्रैक्ट करें? EF. तो मुझे ये मिल जाएगा. मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है GF. अगर मैं ये पूरा जानती हूं और उसमें से इतना सा सब्ट्रैक्ट कर देती हूं, तो क्या मुझे GF नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा. सो GE that is 28.5 √3 minus FE कितना है? 28.5 upon √3. This is 1. इसके अपॉन में 1 है, कुछ नहीं होता, then we consider as 1. So I take LCM. √3 LCM 28.5 को जब √3 तो ऑलरेडी था, √3 से मल्टीप्लाई होगी, and here I have 28.5. So whenever I solve this, what I get? So I have 28.5 √3 को √3 से मल्टीप्लाई की जाएगी, that is 3 minus 28.5 divided by √3. 28.5 to instead of multiplying whole term, क्या होगा? आपका क्वेश्चन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, आपको ज्यादा मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. हम क्या करेंगे? 28.5 को ले लेंगे कॉमन. अंदर क्या रहेगा? 3 minus 1 upon √3. 3 minus 1 that is 2. So 28.5 multiply 2 upon √3. So what you get? This is 5 2s are 10, 16 and 17. So 2 2s are 4 and 57 upon √3. क्या 57 पॉइंट के बाद 0 है? वी डोंट टेक इट एज. क्या 57 में हम 3 को इंक्लूड कर सकते हैं? हम चाहते हैं बेस में √3 ना रहे. सो आई थिंक 19 3s are 57. सो 9 इसे किस तरह से लिखेंगे? 19 multiply 3 अपॉन √3. 3 को किस तरह से लिख सकते हो? √3 into √3 upon √3. जब आप कट करोगे, so what you get? 19 √3 meter is your answer. Number 7. क्या कहा गया इस क्वेश्चन में? From a point from the ground. एक कोई पॉइंट है, जैसे कि हम ये कंसीडर कर लेते हैं ग्राउंड से. एक बिल्डिंग है BC. अब इस बिल्डिंग के टॉप पर एक टावर फिक्स किया गया है. बिल्डिंग के टॉप पर एक टावर लगाया गया है, दैट इज DC. तो जब हम A पॉइंट से टावर के बॉटम को देखते हैं, दैट इज ऑल्सो एंगल ऑफ एलिवेशन. ग्राउंड पे खड़े होकर टावर के बॉटम को देख रहे हैं, तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 45 डिग्री का. और जब A पॉइंट से ही देखा जा रहा है उसके टॉप को, देन we have angle of elevation that is 60 degree. तो हमें क्या निकालना है? We have to find the height of the tower.
हमें क्या गिवन है? हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमें गिवन है. सो लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चन. हाइट ऑफ, दिस इज सॉल्यूशन. हाइट ऑफ बिल्डिंग, height of building 20 meter. In right angle triangle, in right angle triangle कौन सी? ABC. What we have? tan 45 degree is equal to BC upon AB. So what is tan 45 degree? That is 1. BC 20 and AB हम नहीं जानते, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. AB is equal to 20 मीटर. सो AB कितना आ गया? 20 मीटर. सो नाउ लेट अस, हमें निकालना तो DC है, सो अब हम ले लेते हैं एक और राइट एंगल ट्राइंगल. इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी? ABD. ABD. What I have? I have BD upon AB. That is equal to tan 60 degree. BD upon AB. That is equal to tan 60 degree. So BD किससे बना? BC plus CD से बना. BD किससे बना? BC प्लस CD के मिलने से बना. इन दोनों को ऐड करने से बना. एंड व्हाट इज AB? अभी निकाला 20 मीटर. सो व्हाट इज tan 60 डिग्री? √3. सो दिस इज √3. सो व्हाट आई हैव? I have BC प्लस CD 20 नीचे डिवाइड में है, राइट हैंड साइड जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी. दिस इज √3 या फिर 20 √3. 20 मीटर √3 मीन्स BD जो है वो क्या है? BC प्लस CD. क्लियर है? तो ये हमारे पास आ गया है 20 √3. पर मेरे पास जो BC था वो तो मुझे गिवन था. कितना था? 20. मुझे निकालना क्या है? CD. सो दिस इज 20 √3. CD यहीं रह जाएगा. ये 20 जाएंगे दूसरी तरफ, बन जाएंगे माइनस के. सो 20 को हम ले लेंगे कॉमन. अंदर क्या रहेगा? √3 - 1 मीटर. आई होप आप ये समझ गए हैं. क्या किया हमने? हमने BD को किस तरह से लिखा? BC प्लस CD. BC प्लस CD. AB हम जानते हैं 20 है. जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 को √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी. लेफ्ट हैंड साइड क्या रहेगा? BC प्लस CD. अब BC तो बिल्डिंग की हाइट थी जो कि हमें गिवन थी. कितनी? 20. मैंने वो लिख ली. तो क्या मैं यहां से CD निकाल लूंगी? बिल्कुल. CD यही रहेगा और जो 20 है वो चले जाएंगे राइट हैंड साइड. 20 को आप कॉमन ले ले, अंदर क्या रह जाएगा? √3 - 1 मीटर. सो यही हमसे पूछा गया था. और बच्चों जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है वो बिल्कुल सिमिलर है. सेम फिगर बनने वाली है. सेम आप इसी तरह से एंगल्स भी यही गिवन है. पर हमें यहां पर निकालना क्या है? वहां पर आपको निकालना है, आपको DC गिवन है, हाइट ऑफ स्टैचू गिवन है, ये आपको गिवन होगा, आपको ये निकालना होगा. सो यू ट्राई योरसेल्फ. इफ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट and I will answer it. So I hope you all understand these questions very easily. I do my best. But if you have still any doubt, then ask in comment section. Okay बच्चों, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें. जय हिंद, जय